इसमें वीडियो ऑन क्यों नहीं हुई? चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपकी सर। मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम। जी सर, आ रही है। चले, केस किसने प्रेजेंट करना है आज? सर मैंने करना है प्रेजेंट। चलो, ओके, चलो बाकी अपने म्यूट कर लें प्लीज, देन विल स्टार्ट ऑफ। जी बेटा, अपना आप कैमरा सर ऑन करूँ करो। स्टार्ट? ठीक, आप अपनी वीडियो ऑन करोगे कि? चलो जी सर। चलो, दैट्स सर ओके। करूँ स्टार्ट? हाँ, बिस्मिल्लाह करें। जी सर। सर Mrs. Ruxana Rafiq, 26 year, educated up to matric, housewife, resident of Park Patan, married for 8.5 years. It is first cousin Janice marriage of both partners. She is gravida 3, para 2, with no miscarriage, previous one cesarean section, with last menstrual period 20th May 2020, making her expected date of delivery 27 February 2021, with the blood group B positive. She admitted to the outdoor patient department of Services Hospital Lahore on the 8 February 2021 with gestational amenorrhea 37 plus 2 weeks for the workup and evaluation of increased water around the baby. She is chronic hypertensive for 2 years, diagnosed by the physician. She is taking medicine on and off, but name not known to the patient. She checks her blood pressure occasionally and not control according to the patient. But she has no history of chest pain, flank pain, and visual disturbance. She has no history of urinary tract infection, urinary retention, rash, joint pain, heat and cold intolerance, tremor, palpitation. No history of fainting attack, no history of chest pain, shortness of breath, and she has no history of review by the physician and preconception counseling and folic acid intake before the conception. She conceived in her regular cycle. It was spontaneous conception. Urine pregnancy test done after 1.5 months of missing her period. No history of folic acid intake and blood and urine test carried out. Her blood pressure checked in a clinic and it was raised and Aldomet started, which she took on and off. She visited to a private clinic and her scan done, which showed a single intrauterine pregnancy with normal fetal cardiac activity. Patient has no history of excessive vomiting, fever, flu, rash, joint pain, vaginal discharge, bleeding, urinary complaint. She perceived fetal movement in fifth month and unable to correlate with the calendar month. She took iron and calcium regularly. Her anomaly scan done at the 6th month in a private clinic, which showed the increased liquor around the baby. Her blood sugar fasting checked, which was normal. Patient has no history of increased growth with normal fetal movement, no history of shortness breath, indigestion, leg swelling, urinary urgency, frequency, and lower abdominal pain. Pediatric evaluation was done and told to continue the pregnancy and some anomaly of the baby was told according to the patient. Patient has no history of increased urination, increased thirst, and appetite and no history of family and previous anomalous baby, and she has no history of any drug intake, blood pressure check, which was normal, and she did not take Aldomet in second trimester. No history of easy fatigability, weakness and palpitation, vaginal discharge, and lower abdominal pain. She booked in services hospital 15 days back and scan done, which showed increased liquor of the baby, pediatric evaluation done, and told to continue the pregnancy with the surgery of the baby after delivery. Now she is admitted for the evaluation of increased liquor and her blood pressure is raised and tablet Aldomet 2 TDS started. Steroid cover given. Certain investigation also done, but patient report is not known to the patient. Now patient has history of increased growth of the baby and difficulty in walking, sitting up, but no shortness of breath, indigestion, and the leg swelling. Fetal kick count is normal, and fetal heart rate monitoring is being done twice daily, but no physician evaluation done, and further plan of management is not discussed with the patient.
Regarding obstetrical history, her first pregnancy was spontaneous and booked. Pregnancy 7.5 year back. It was normal vaginal delivery at term with a male healthy alive baby with no antepartum, intrapartum, and postpartum complication. Baby breastfed and vaccinated. Her second pregnancy was also booked and spontaneous pregnancy. It was term pregnancy with and cesarean section done due to the failed progress with an healthy alive male baby of 3.5 year, no antepartum, intrapartum, and postpartum complication. Baby breastfed and vaccinated. She is previous one with no history of the diabetes, ischemic heart diseases, asthma. And family history, she has family history of hypertension, but no history of anomalous baby in family. She has normal sleeping and bowel habits, no drug addict, not smoker, no drug allergy. She live in self-owned house and basic necessity of life are met with difficulty. 26 years lady, well oriented in time, place and person, sitting comfortably on couch with the blood pressure 110 by 80 millimeter of mercury, pulse 88 per minute, temperature 98 Fahrenheit, respiratory rate 16 breath per minute with the height 5.2 feet and weight 65 kg and reflexes normal. She is not pale, clubbing, jaundice and cyanosis not seen. Thyroid not enlarged. Orodental hygiene satisfactory. All accessible lymph node not palpable. Sacral and pedal edema not present. Both breast and nipple normal. No mass palpable in all four quadrants of breast. First and second heart sound audible with no added sound and apex beat audible in the fifth intercostal space lateral to mid-clavicular line. Normal vesicular breathing with no added sound bilaterally. On inspection, protuberant abdomen, moving with respiration, with normal place umbilicus, no stria, visible pulsation seen, with the fenestrial scar mark of previous cesarean section is present, no tenderness on palpation. Symphysiofundal height, 44 centimeter, longitudinal cephalic, liquor seems to be excessive, estimated fetal weight not assessed due to the increased liquor, fetal heart sound not appreciated. So yes, patient history. Okay, beta. Can you summarize your case? जी sir. 26 year, gravid 3, para 2 with no miscarriage, previous one cesarean section at 37 plus 2 weeks, known hypertensive for 2 years with increased liquor due to some anomaly with some physiofundal height, 44 centimeter, longitudinal क्या हो गया cephalic, like, जी sir, सॉरी liker, बेटा, आप थोड़ा सा दोबारा रिपीट करो, बीच में आपका हैंग अप हो गया था. sir, 37 plus 37 plus 26 जी sir, 26 year, gravid 3, para 2 with no miscarriage, previous one cesarean section at 37 plus 2 weeks, non-hypertensive for 2 years with increased liquor due to some anomaly, with some physiofundal height 44 centimeter, longitudinal, cephalic, liquor seemed to be increased, estimated fetal weight and fetal heart sound not appreciated due to the increased liquor. चलो गुड. Investigations. Sir, investigation में blood group B positive. Hemoglobin level 13.8 gram per deciliter, TLC and platelet normal. Blood sugar fasting 105 milligram per deciliter. Hepatitis B surface antigen and anti-HCV negative. And urine complete was normal. Liver function test में sir AST 12, ALT 23, and RFTs में creatinine was 0.5, urea 16, serum uric acid was 4, and dating scan was not available. And in the recent scan, a single cephalic presented. Scan. We'll hold on to the scan. Scan हम normally बाद में बात करते हैं. अभी let's talk about this investigation. Okay. अल्ट्रासाउंड के अलावा तो आपने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करानी? सर इसमें क्योंकि क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, LFTs, RFTs, यूरिक एसिड भी हुए हुए हैं, और सर इसके अलावा सर अगर फंडोस्कोपी इफ अवेलेबल तो सर वो करवा सकते हैं. हाइपरटेंशन का वैल्यूएशन इसका नहीं हुआ हुआ कभी भी पेशेंट का. नहीं, आप क्या कराओगे ना बेटा, क्योंकि एग्जाम तो आप दे रहे हो. सर बस सर इसमें सर इन्वेस्टिगेशन तो आई थिंक कंप्लीट है, इसके अलावा चलो
Why do you want to have this LFTs and RFTs in this case? So because she is having chronic hypertension, which is a multi-organ disease, and to see the status of the liver and kidneys. What do you mean by chronic hypertension? Because sir, she is having the hypertension for 2 years. So it was diagnosed before her pregnancy. So was she taking any medication for this? Yes, sir. She was saying she was taking some medication for the blood pressure, but she don't know the name. But she is not taking regularly, and she was saying when the she feel headache, she go to the physician and blood pressure is raised 150, 100. It's some, but she don't know exactly, and she take medicine by the physician, but name don't. She don't know the name. Okay, what happens to the blood pressure in pregnancy then? This is. What happens to the hypertension in pregnancy? Sir, she gave the history that in first trimester, when she get her checked in a private clinic, her blood pressure was raised and Aldomet started, but she didn't take it regularly. And then she have no history of any antihypertensive intake in the second trimester. But when she properly booked in the services hospital, her blood pressure was raised and Aldomet 2 DDS started to her. So she's still on Aldomet, 250 Yes, milligram, sir. Yes, sir. and It is is she taking 500. regularly? Ji, sir? Is she taking regularly? Yes, sir. In the during hospital stay, she is taking regularly. The And hospital blood pressure station? is controlled on the drug sheet. On the sir BP charting, the blood pressure was normal on the Aldomet to 500 TDS. 500 GTS. So what kind of changes do you expect in this RFTs and LFTs? Um, sir, if the it effect on the liver, it could be raised or renal function test can be disturbed. But sir, it is in the last. In the last. Geez. So first of all, it proteinuria and serum uric acid is raised, then it affect on the kidney But function. I suppose there was no proteinuria in urine and there was no uric acid. Uric acid was normal. Yes, sir. Uric acid was And normal. why did we have this LFTs and RFTs done? Sir, because she has chronic hypertension and no elevation for the kidneys and livers done already, sir, to have a baseline. Okay, then what is the role of endoscopy? To see the changes in the eye because she has chronic hypertension for the cotton wool exudate and dot and blot hemorrhage. If any changes by the Let's suppose अगर changes आ जाती हैं फिर क्या करो? सर फिर उसको सर evaluation कराएंगे ophthalmologist से. When? कब? Ma'am, usually, sir, it is recommended usually at if any changes early 16 weeks. अगर booking पे कुछ changes आ जाती हैं, then बेटा, we we तो the patient is at what time? सर अगर अर्ली बुकिंग विजिट पे आती है ना तो सर अभी 37 वीक्स पे है और सर अभी तो जी सर हाँ, अभी तो सर उसको कोई विजुअल डिस्टरबेंस कोई इस तरह की कंप्लेन नहीं है तो सर अभी तो नहीं लेकिन अगर अर्ली बुकिंग विजिट पे आ जाएगी तो फिर हम एवेल्युएशन भी कराएंगे और अगर are कोई we talking चेंजेस about general hypertension or are we talking about this specific patient? सर दिस स्पेसिफिक पेशेंट इस specific patient में फंडोस्कोपी का क्या आउटकम या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या करोगे आप? सर फिजिशियन से एवेल्युएशन करवा लेंगे एक दफ़ा सर सारे उसकी जनरल हेल्थ के लिए बिकॉज क्रॉनिक हाइपरटेंशन है और नॉन कंप्लाइंट है अगर हॉस्पिटल में आई है तो सर उसकी एक दफ़ा प्रॉपर सारी एवेल्युएशन फिजिशियन से एक दफ़ा करवा लेंगे What kind of do you think further evaluation will be done by a physician? सर फाइंडोस्कोप फंडोस्कोपी तो आपने कर ली, उसमें चेंजेस आ गई. सर ब्लड प्रेशर के लिए एंटी हाइपरटेंसिव वैसे सर उसका ब्लड प्रेशर एल्डोमेट 2 टीडीएस पे कंट्रोल हो गया सर इफ तो नॉट what will the कंट्रोल physician? देन विल Then गेट what हर will the एवेल्युएशन physician? नहीं बेटा, what will the physician will do then? What kind of evaluation are you looking for from the physician? अगर उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है, फिर आप क्या चाहते हो?
अगर कंट्रोल नहीं होगा तो फिर एक दफा रिव्यू कर लेंगे। यार बेटा, हम स्पेसिफिकली वी टॉकिंग अबाउट दिस पेशेंट, वी नॉट टॉकिंग अबाउट क्रॉनिक हाइपरटेंशन या जनरल पेशेंट की बात नहीं कर रहे। जी सर। वी आर फिक्स टू दिस पेशेंट। मैं तो वी टॉकिंग अबाउट दिस पेशेंट की मैं बात कर रहा हूँ। आप किताब सर, का चैप्टर बंद कर लो और इसके बारे में सोचो, इस पेशेंट का क्या करना है आपने। सर इस पेशेंट की तो फिलहाल सर क्योंकि बट कंट्रोल है तो अभी तो सर एवेल्यूशन की जरूरत नहीं है। नहीं, वाई देन फंडोस्कोपी, मैं दोबारा उस पर आ रहा हूँ। हर कोई इन्वेस्टिगेशन की रीजन होती है ना, कि उससे सर आप अगर ये निकलेगा तो हम ये करेंगे, ये निकलेगा तो हम ये करेंगे। ये फॉर द शॉक के लिए तो हम फंडोस्कोपी नहीं कर रहे। जी सर आई चेंजेस कोई आई पे इफेक्ट देखने के लिए मैं क्रॉनिक तो कह रहा हूँ हाइपरटेंशन। चेंजेस आ गई, फिर क्या करोगे। सर चेंजेस आ गई तो सर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से फिर एवेल्यूएशन करवा के देख लेंगे सर चेंजेस कौन सी हैं और किस डिग्री की हैं। अच्छा, किस किस्म की चेंजेस आती हैं फंडोस्कोपी में। सर फोटन वूल एक्सुडेट हो सकते हैं, डॉट एंड ब्लॉट हैमरेज हो सकती हैं, एवी निपिंग हो सकती है। शाबाश। और ये क्या और सिग्निफाई करते हैं, व्हाट डज दैट सिग्निफाई। सर ये बैकग्राउंड रिटेनोपैथी को सिग्निफिकेंट सिग्निफाई करते हैं। Sure. You said कि you gonna do the blood sugar fasting, 105 IU, 105 IU. What does that show? सर ये आपने क्यों डायग्नोस कराई, आपने ये वाली क्यों इन्वेस्टिगेशन इसकी कराई। सर एक तो सर बेसलाइन के लिए बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन में और सर What do you mean by baseline? ये तो हमारा, was she a book case? नो सर इट वाज अनबुक्ड केस। शी केम एट द सर अभी फ्यू डेज बैक आई है बुकिंग के लिए हमारे हॉस्पिटल। उससे पहले तो ये चेक कराती रही है ना समवेयर। समवेयर सर क्लिनिक में चेक कराया 2 to 3 विजिट ऑन एंड ऑफ चेक कराया लेकिन रेगुलर हमारे पास अभी बुक हुई है। और और ड्यूरिंग सर दोस चेकअप्स, ड्यूरिंग कोई और इन्वेस्टिगेशन की हुई थी। सर सिर्फ स्कैन कह रही थी हुई है। स्कैन एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और 6 मंथ में स्कैन होते रहे हैं। ब्लड She, प्रेशर चेक होता रहे ऑन एंड she ऑफ। did not have any other blood test done during all this time. नहीं सर उसके पास कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी। ब्लड शुगर रिकॉर्ड का भी उसको नहीं पता था कि कभी चेक हुई है या नहीं। तो फिर आप फास्टिंग क्यों करोगे उसकी। सर बिकॉज इट हैज ग्रेटर सेंसिटिविटी। और मैं सर क्योंकि ये फास्टिंग जो है उसकी ऑलरेडी एक लेवल हो चुका था हॉस्पिटल में चेक हुआ हुआ। आप क्या करोगे। सर ब्लड शुगर रैंडम चेक करेंगे सर। ब्लड शुगर रैंडम। जी सर। So we coming back to this again. Why are you want to do this random? क्या चीज डायग्नोस करना चाहते हो आप, क्या देखना चाहते हो। सर उसका ब्लड शुगर लेवल एक दफ़ा क्योंकि सर एनॉमली भी है तो लाइकर भी इंक्रीज है तो सर उसके लिए हमें डायबिटीज को रूल आउट करना होता तो डायबिटीज को इस केस के अंदर रूल आउट करने के लिए व्हाट इज द बेस्ट टेस्ट वी कैन डू। है। सर हम 6 लेवल मॉनिटरिंग कर सकते हैं बिकॉज द पेशेंट इज एडमिटेड। अच्छा, हाउ डू वी स्क्रीन डायबिटीज किसी पेशेंट में। For the screening purpose, we can use the blood sugar fasting or blood sugar random. And for diagnosis, sir, OGTT होता है oral glucose tolerance. इस पेशेंट में कौन सा रिकमेंडेड है। Because patient is at 37 weeks and she has already anomalies and she has increased liker. So, sir, is 37 weeks पे हम or patient is admitted, we can do the 6 level monitoring. ये बंद हो गया, आपको आवाज आ रही है अभी। जी सर आवाज आ रही है। ओके चलो, और ओके सर आपने we कहा। can also do the HbA1c to see the record of previous 3 months.
अच्छा, मुझे आप फिर ये बताओ कि ऐसा कौन सा पेशेंट है जिसमें आप ये ओजीटीटी करोगे, और ऐसा कौन सा पेशेंट है जिसमें आप ये फास्टिंग करोगे, और ऐसा कौन सा पेशेंट है कि जिसमें आप ये 6 पॉइंटर्स करो? सर ओजीटीटी तो हम सर 28 वीक्स तक कर सकते हैं डायग्नोसिस के लिए। और उसके सर बाद ऐसे सर उसके उसके बाद बाद भी सर कर सकते हैं, लेकिन जिस पेशेंट में हम कोई कॉम्प्लिकेशन पॉली या माइक्रो हो तो उसमें नॉर्मली फिर हम ओजीटीटी नहीं करते, उसको हम ग्लूकोज का लोड नहीं देते अगर कॉम्प्लिकेशन हो ज़्यादा हो थर्ड ट्राइमेस्टर में, बिकॉज सर लोड देने से, अच्छा, इनकी सबकी सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी कितनी है? सर ओजीटीटी की सेंसिटिविटी, सर सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी का मुझे नहीं आइडिया। ओके, बाकियों की, अपना जो अपना फास्टिंग है या आपका जो 6 पॉइंटर है, उसकी कितनी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी है? सॉरी। वो नहीं मिला। ओके, चलो लेट्स गो अहेड। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। अल्ट्रासाउंड, इसका इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है आपके इन दिस केस? सर पॉलीहाइड्रोमियास ड्यू टू द पॉलीहाइड्रोमिस बेटा, क्या होता है, डिफरेंशियल में आता है? व्हाट इज द लास्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस इन दिस केस? सर इट इज कुड बी सर इस पेशेंट में सर वैसे तो रूल आउट किया ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज है। ओके, ट्विंस, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज, और सर पॉलीहाइड्रोमियास अच्छा, माइक्रोसोमिक। पॉलीहाइड्रोमिस, मैक्रोस्कोमिक, वो तो आपने एलजीए बता दिया बेटा, उसी में आ जाएगा। और हाइड्रोप्स हो सकता है। हाई ड्रॉप्स तो मुश्किल होगा इस तरह कहना, अनलेस कैन वी हैव द एनॉमलीज आप कह सकते हो, क्योंकि आपने 2-3 दफा कहा कि इसकी एनॉमलीज है। जी सर तो मेरे ख्याल है डिफरेंशियल में एनॉमलीज, जी सर एनॉमलीज, हाइड्रोप्स एनॉमलीज सर। एनॉमलीज को तो आप कांट फॉरगेट अबाउट। अच्छा, मुझे आप, क्योंकि मेरे पास तो नहीं, आपके पास अल्ट्रासाउंड है, उसकी रिपोर्ट बताओगे? जी सर इसका सर डेटिंग स्कैन अवेलेबल नहीं था, एक रिसेंट स्कैन जो हॉस्पिटल में एडमिशन के बाद हुआ था उसमें सर सिंगल प्रेगनेंसी थी, कफालिक प्रेजेंटेशन थी एंड हम्म। 36 वीक्स के पैरामीटर थे। और सर इसका नॉट AFI 35 था और उस पे डबल बबल साइन था, एस्टिमेटेड फीचर वेट 2.7 था, प्लेसेंटा अपर था। अच्छा, व्हाट इज अ डबल बबल साइन? सर डबल बबल साइन is due to the duodenal atresia. ड्यूडिनल एट्रीजिया, कोई और वजह भी होती है इसकी? तो duodenal atresia की वजह से हो सकता है। स्पेसिफिकली डबल बबल साइन duodenal atresia को शो करता है। ओके, अच्छा, अब इसको आप मैनेजमेंट कैसे करोगे? हाउ विल यू मैनेज इट? So first of all, I will consult the patient about the diagnosis that she is having the polyhydramnios with the anomaly हम्म। and fetal maternal risk, and then explain the patient fetal maternal risk and discuss with with the fetal maternal monitoring. I will explain. I will discuss the patient with the mode and time of delivery, and my aim of management is to control the to keep control the blood pressure, and then which is less than 140/90, and to have the uh, uh, pediatric evaluation for the baby and maternal monitoring, with the plan of delivery is to deliver the baby at 38 weeks, as there is a risk of maternal risk and the fetal risk. So my plan is to deliver the baby at 38 completed weeks. Okay, so you plan to deliver the baby by 38 weeks. 38 weeks tak, would you keep the patient admitted in the hospital? Um,
Sir, as she's 37 plus 2 weeks, so sir, I will keep, and she is having the polyhydramnios moderate. So I will sir keep admitted in the hospital because there is certain maternal fetal risk. So for the monitoring, I will keep the admitted. How will you monitor this patient? For the आपके पास sir, बैठी आपके पास sir, वार्ड में है, एक बेड है, उसने ले लिया है, वहां बैठी हुई है, बताओ क्या करोगे आप उसके साथ फिर? sir उसकी जो है ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करेंगे डेली वो तो एंड नॉर्मल। सर जी सर नॉर्मल है लेकिन सर आई विल keep monitoring for the keep her for the monitoring of the blood pressure and then sir fetal fetal heart I will give the patient to the I will give the patient fetal kick count chart, fetal heart rate monitoring twice daily, fetal heart rate monitoring twice daily. अच्छा, okay. or sir give the fetal kick count chart and explain the patient about the labor pains and any in case if she has any decreased fetal movement labor pains to report immediately because she's having the polyhydramnios and there is a risk of the rupture membrane during labors and cord prolapse. वो कहती है जी ये तो सारी चीजें मैं घर पे भी कर सकती हूँ, आप मुझे हॉस्पिटल में क्यों रख रहे हैं? So because she is having the polyhydramnios and if there is a rupture membrane and cord prolapse and abruption and she is living as Park Patan, she is keen for far away, so it will be difficult for her to reach the hospital in time. कहती है जी मेरा रिश्तेदार रहते हैं यहाँ लाहौर में। सर अगर ब्लड प्रेशर पे सर I will sir 3 to 4 days I will keep admitted her for the monitoring and for What does her husband do? her husband is a painter by profession and do some business also. और ये दोनों फिर बैठे रहेंगे आपके हॉस्पिटल के अंदर फॉर द नेक्स्ट 1 week, आई सपोज? Sir, 3 to 4, sir, 2 weeks, 4 to 5 days to go. At sir, 4 or 5 days पे 38 weeks और पेशेंट सर नॉन कंप्लाइंट भी है सर, पहले भी उसने अपना ब्लड प्रेशर नहीं चेक कराया और वो कहीं उसने प्रॉपरली अपनी मेडिसिन नहीं ली, तो सर अभी भी वो पेशेंट जो है वो मे तो बी ये किसी आप उसको कॉम्प्लिकेशन के साथ हमारे पास आ जाए. नहीं, फिर then you're keeping the patient here because she's non-compliant. Is that the reason? सर पाकपतन से आई है और सर पेशेंट खुद भी कह रही थी कि वो अभी एडमिटेड ही रहना चाहती है और क्योंकि वो दूर से आई है तो 4-5 days है और ओके, अच्छा 5 days के बाद फिर क्या करोगे आप? सर 5 days के बाद सर उसका डिलीवरी प्लान करेंगे, पेशेंट से डिस्कस कर लेंगे एंड एज माय पेशेंट इज हैविंग प्रीवियस वन cesarean section, polyhydramnios and fetal anomaly. My plan is to deliver her by cesarean section. Why do you want to do this section? Patient कहती है कि मैंने सेक्शन नहीं कराना. Sir, I will discuss with her the fetal-maternal risk. कि सर उसका Would you बेबी like भी to एक do तो ना. something else before you decide upon the mode of delivery? What are the risks in this case? सर पेडियाट्रिक evaluation भी एक दफा कि डिलीवरी के टाइम पे और सर क्योंकि बेबी एनॉर्मलस है, ड्यूडेनल एट्रीजिया है, पॉलीहाइड्रामियास है, मैम सर इज इन दिस केस में both maternal and fetal risk in the case of the normal delivery as there is a patient fetus may go in the distress and the mother will have the rupture of membrane or during after rupture of membrane cord prolapse abruption and fetal distress. That's why my plan is to deliver her lower segment cesarean section, but I will discuss with the patient. पेशेंट कह रही मैंने नहीं सेक्शन कराना बेटा. But sir, I will counsel her about the risk to the baby and the mother during the normal vaginal delivery. She still says कि I want to have a normal delivery.
Sir, but if she doesn't go in the labor till 38 weeks, then I will explain the patient that there is only the option is lower segment cesarean section because we don't do the induction. The only option is a lower segment C-section. फिर आप डिस्कस क्या कर रहे थे पेशेंट्स? सर अगर पेशेंट कह रही है कि मैं नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहती हूँ तो सर उसको डिस्कस कर लेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के प्रोज एंड कॉन एंड सिजेरियन के प्रोज एंड कॉन. काउंसलिंग के सिजेरियन सेक्शन इज द सेफ वे फॉर बोथ द मदर एंड द बेबी. शी स्टिल इंसिस्ट कि जी मैं तो नॉर्मल डिलीवरी करानी है. फिर आप क्या करोगे? Sir, because if she don't go in the labor till 38 weeks and she is having previous one, then I will also consult that there is so many risk आपने factors. सुबह सेक्शन प्लान किया, रात को लेबर में चली जाती, फिर क्या करो? Sir, I will do cesarean section in this patient because sir, I जब want to आपने give a sick baby to the mother. नहीं, जब आपने डिसाइड ही किया हुआ है कि जी हमने तो करना ही सेक्शन है, तो फिर आपने 3 दफा मुझे कहा है कि जी हम तो डिस्कस करेंगे पेशेंट को, फिर तो आप जाके बताओ कि जी हमने आपका सेक्शन करना. डिस्कशन तो है ही नहीं. डिस्कशन तो तब होती है ना जब चॉइस होती है. जी सर. सर उससे पेशेंट से लेकिन मोड ऑफ डिलीवरी डिसाइड करने से पहले एक दफा डिस्कशन करेंगे उससे कि ये इन दोनों के प्रोज एंड कॉन दोनों प्रोसीजर के बता के पेशेंट को एक दफा कॉन्सल्ट तो करेंगे सर उससे कॉन्सेंट लेने से पहले कि सिजेरियन सेक्शन के प्रोज एंड कॉन ये हैं और डिलीवरी के ये हैं, उसमें बच्चे को रिस्क है, मदर का भी रिस्क है. कहती है डॉक्टर साहब मैंने तो पहले भी नॉर्मल एक कराया हुआ डिलीवरी, आई वुड लाइक टू हैव नॉर्मल डिलीवरी, मैं दोबारा रिपीट सेक्शन नहीं करना. बिकॉज सर पहले जब नॉर्मल डिलीवरी हुई थी एट दैट टाइम शी वाज नॉट प्रीवियस वन, शी didn't have the polyhydramnias and the anomaly in the baby. But now the situation is different because she is क्या previous काउंसिल one. करो? ओके, हाउ विल यू काउंसिल द जी क्या करोगे? Sir, I will counsel her that there is I will go for the after the anesthesia evaluation, pediatric evaluation, and will assessment will go for the lower segment cesarean section because it is a safe route for both the, in this case for both the mother and the fetus, and that after the lower segment cesarean section I will क्या डॉक्टर साहब ये take नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती? no sir, sir इस patient में बहुत ज़्यादा risk है. I will not take the risk for the baby because she is previous one. There is a risk of डॉक्टर scar साहब मेरी sir, और नॉर्मल मैं सर polyhydramnias है moderate degree सर, उसमें तो स्कार पे और ज्यादा प्रेशर होगा और ज्यादा रिस्क होगा रप्चर का. कितना रिस्क होता है? सर लेस देन 1% होता है प्रीवियस वन में. तो 99% चांसेस हैं कि नहीं होगा, और फिर भी आप मेरा सेक्शन कर रही हैं. बट सर इसमें इस पेशेंट में सिर्फ शी इज रीजन फॉर डूइंग द सिजेरियन सेक्शन इज नॉट ओनली द प्रीवियस वन. देयर हाँ. इज द अदर रीजंस polyhydramnias, fetal anomalies, risk of cord prolapse, fetal distress, What abruptions. what kind of anomalies have made you decide कि जी ये नॉर्मल नहीं हो सकती? Does the duodenal atresia is an indication for a C-section? Uh, it's not an indication for cesarean section, but fetus may go into distress, fetal distress during the labor because ड्यूरिंग fetus has लेबर अगर होता है तो आप क्या करते हो फिर? डिस्ट्रेस किस तरह डायग्नोज करते हैं? सर इसको स्कैन पे डायग्नोज करते हैं ड्यूडेनल एट्रीजिया को. नहीं नहीं बेटा, हम डिस्ट्रेस की बात कर रहे हैं ना. आपने डिस्ट्रेस की बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मली पेशेंट कैन गो इनटू डिस्ट्रेस, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है. जी सर. उसके लिए सर क्या करें? सीटीजी पे सर सीटीजी मॉनिटरिंग करते हैं. अच्छा. और बिकॉज patient is the previous one poly or if she wants the trial of the neighbor, it needs one-to-one monitoring, and sir in our busy hospital this facility is not available. One-to-one monitoring we can't do. मैं सपोज आपके पास सारी फैसिलिटी अवेलेबल, यू आर सिटिंग इन वर्ल्ड्स बेस्ट सेंटर, फिर uh, sir, if the facility is available, then still sir I will counsel the patient because there is a risk to the fetus distress and आपने fetus रिस्क तो is कहा है बेटा, abnormal. 1% है कि ये अपना कि इसका रप्चर हो जाएगा. 99% चांसेस तो हैं, सारा कुछ हो जाएगा.
Sir, because I want to give a safe baby to the mother. So. ओके, आपने सेक्शन किया एंड अनफॉर्चुनेटली बेबी जो है बिकॉज ऑफ द एनॉमलीज डाइड few hours after this delivery. Sir, because during the before the cesarean section, I will make the availability of senior pediatrician and सीनियर पेडिट्रिशियन भी था, नर्सरी ले गया, नर्सरी के बाद फॉरेन डिबेट हुआ और 2 घंटे के बाद पेशेंट का बेबी एक्सपायर हो गया। अगर आप पेशेंट के पास जाते हो फिर क्या कहोगे? चलो अभी हम वी आर लॉस्ट टाइम, मैं अब थोड़ा सा आपको फीडबैक दे देता हूँ, ठीक है? अच्छा, 2-3 बातें हैं बेटा। नंबर 1, मेरा ख्याल है आपकी हिस्ट्री अच्छी थी, इट वॉज गुड जो आपने इतना सारा इसका किया हुआ था। सिर्फ इसका सीक्वेंस थोड़ा सा इसको जरा रीलुक करके आप देखो, क्योंकि नॉर्मली हम जो हिस्ट्री प्रेजेंट करते हैं ना, पहले तो बायोडेटा आपने बड़ा अच्छा बता दिया, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बता दी, फिर उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड और थर्ड के बाद डिवाइड करो, फिर आप उसमें अपनी मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री डालो। आपने एक्चुअली मेडिकल का पहले, बिकॉज शी वाज हाइपरटेंसिव, वो आपने पहले डाल दी। सर और वो नॉन हाइपरटेंसिव थी इसलिए वो मैंने उसको पहले डाल दिया। आपकी बात ठीक, लेकिन आई थिंक कि उसमें सिर्फ जो उसने ड्रग्स वगैरह ली उसका जरूर मेंशन कर दो, लेकिन आपने इसी में उसका जो होती है हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन रिलेटेड डीमा, ये सारा कुछ आपने साथ ऐड कर दिया था। ये आप बीच में मत डालो, मेरा ख्याल है कि उसको जिस तरह मेडिकल में हम बीच में ऐड करते हैं या जिस ट्राइमेस्टर में था उसके हिसाब से बताओ। लेकिन सर अगर पीआईएच होता है उसको तो हम जिस ट्राइमेस्टर में डायग्नोस होती है वहां से ही स्टार्ट करते हैं। उसमें और सर फिर क्रोनिक हाइपरटेंशन तो क्योंकि पहले से होती है तो फिर उसको फिर हम ट्राइमेस्टर में या इस तरह कैसे करेंगे एडजस्ट बाद में? आप इसमें ये कह सकते हो कि जी कि बिफोर प्रेगनेंसी उसका आप शुरू में बता सकते हो कि उसका ब्लड प्रेशर का क्या हालात है, या ये बिल्कुल शुरू में बताओ, मेरे हिसाब से इसको एंड में बता दोगे तो बेहतर रह जाएगा। सर ट्राइमेस्टर से भी एंड में प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के बाद। हाँ, उसके या बाद आप शुरू में कह दोगे शी इज अ नॉन हाइपरटेंसिव ऑन फ्ला मेडिकेशन सिंस 2 months, 6 months, 1 year, 6 years, एंड आफ्टर शी बिकेम प्रेग्नेंट तो उसकी ये मेडिकेशन चेंज करके शी वाज शिफ्टेड ऑन एल्डोमेट या व्हाटएवर जो आप करके डालते हो, फिर बाकी आगे चलो। ठीक है। दूसरा देखो, मेरा तो ख्याल है कि एक पेशेंट जिसमें इतने सारे रिस्क फैक्टर्स हों, पॉलीहाइड्रोमियाज है, ये है, उसके लिए आइडली स्पीकिंग और वो आपके पास हॉस्पिटल में भी है तो उसका OGTT इज द मस्ट। आप पे भी करवा लें अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो। बिल्कुल करवा लो। मुझे कराने में देखो, उसको कोई भी इन्वेस्टिगेशन जब भी आप कराते हैं उसको डिफेंड करना आसान है। मैं आपको डिफेंड करने के लिए इसको आप दोनों की फास्टिंग की और ये अपना क्या कहते हैं रैंडम की 6 पॉइंटर की सेंसिटिविटी आपको पता होनी चाहिए, जो आपको डिफेंस आसान कर देती है, चाहे वो 38 वीक्स पे है, अनलेस के अंटिल आप उसको अगले दिन आपने उसकी सेक्शन करना है या कोई डिलीवरी करनी है। उसकी रीजन ये है, उसकी रीजन आपकी डिफेंस में ये हो जाती है कि उससे आपकी मैनेजमेंट प्लान बड़ा आसान हो जाता है। और दूसरा, इस वाले केस के अंदर आई सपोज के HbA1c भी होना चाहिए अगर ये ज्यादा आता है, ताकि आपको पता हो कि वो क्या आप क्या डालते हो। सिर्फ फास्टिंग से इज नॉट द ओनली फैक्टर विच करे, लेकिन देखो एग्जाम के अंदर देयर इज एब्सोल्युटली कोई राइट और रॉन्ग नहीं है, आपको डिफेंड करना आना चाहिए उसे। जी सर। सर अगर फास्टिंग के साथ साथ हम उसके क्योंकि पेशेंट एडमिटेड है और 6 लेवल मॉनिटरिंग कर लें तो सर OGTT में या इस दोनों में से फिर किसको प्रेफर करें हम? आपकी ये स्क्रीन कर रहे हो ना आप उसकी? जी सर। स्क्रीनिंग के लिए सेंसिटिविटी आपने बतानी है कि जी ये 6 पॉइंट ज्यादा आसान है कि ज्यादा सेंसिटिव है, कि आपने ये OGTT कराना है या GCT कराना है। इन तीनों में ही आपने डिफरेंशिएट करना है कि आपने इस पेशेंट को कौन सा इन्वेस्टिगेशन करके आप क्यों करना चाहते हो। एक अगर लेट्स सपोज आप ये भी कह सकते हो उसको डिफेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम HbA1c कराएंगे, अगर वो नॉर्मल आता है तो हम इसको नॉर्मल लेके चल सकते हैं। पर जो भी इन्वेस्टिगेशन आप कराओगे उसकी देयर हैज टू बी अ रीजन एंड जस्टिफिकेशन, और उसका आ जाके इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी पढ़ लो आप उससे आपको, ताकि आप जब एग्जाम में बोलोगे
तो उसके पीछे आपके भी देयर हैज टू बी स्ट्रांग, क्योंकि मैंने ये कहीं नहीं पढ़ा कि जी 36 वीक्स पे कि 28 वीक्स के बाद दोबारा आपने ओजीटीडी नहीं कराना। सर वो उसकी लॉजिक ये अक्सर बुक्स में लिखी हुई है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में इंसुलिन रेजिस्टेंट ट्राइमेस्टर वाइज इंक्रीज होती जाती है, और ओजीटीटी में हम उसको 75 ग्राम ग्लूकोज लोड देते हैं, और ओके, ऑलरेडी रेजिस्टेंट इंक्रीज होती है, और स्पेशली अगर किसी पेशेंट में पहले से कॉम्प्लिकेशन हो, इसका मतलब है पहले ही वो डिरेंज लेवल्स हैं, तो हम उसको और ग्लूकोज का लोड देंगे तो वो फिर देखो आप ओजीटीडी कराते हो, आपने फास्टिंग कराई, वो आ जाती है 200 या 120 130 आ जाती है, फिर देन यू डोंट कंटिन्यू विद दैट, वो तो डायग्नोज हो गया कि डायबिटिक है। जी सर, उस पे आप तो एक फर्स्ट लेवल। रीडिंग लेते हो, वो 200 प्लस आ जाती है, बाकी रीडिंग्स लेने की आपको जरूरत नहीं है, आप इस दोबारा उसकी मैनेजमेंट स्टार्ट कर लोगे जी सर। प्रैक्टिकली। जी। लेकिन मेरे हिसाब से तो जिसमें ये पॉलीहाइड्रोमियास भी आ गया है, एनोमलीज भी आ गई हैं, और ये पेशेंट है जो उसमें, तो ओजीटीडी वुड बी अ बेटर ऑप्शन देन सब जस्ट डूइंग अ ब्लड शुगर फास्टिंग। लेकिन वही अगेन बात है, इम्तिहान में आके डिफेंड करना है कि नहीं करना। दूसरी बात आ गई, आपने किताबों में पढ़ा हुआ है फंडोस्कोपी, फंडोस्कोपी आज तक कितनी दफा की है आपने अपने वार्ड में? सर वैसे यूजुअली तो रूटीन में नहीं होती सर, प्रैक्टिकली तो कितनी बहुत दफा है सर, लेकिन कितनी जी दफा सर। की कितनी दफा की है? सर बहुत रेयर है, फंडोस्कोपी असेसमेंट तो नहीं हम करवाते नहीं, क्लिनिक। क्यों नहीं करवाते फिर? उसमें तो नहीं करवा रहे, फिर आप एग्जाम में जाके क्यों बोल रहे हो? सर बट आइडियली तो सर एक दफा सर अगर कोई क्रॉनिक हाइपरटेंशन का पेशेंट है, एक बेस हम्म, लाइन फंडोस्कोपी और उसके लिवर किडनी और उसकी जनरल हेल्थ की असेसमेंट होनी चाहिए मैं रूटीन में। मैं आपके एलएफटीज आरएफटीज और यूरिक एसिड से एग्री करता हूँ। फंडोस्कोपी का जरा सोच के इम्तिहान में जाओ कि अगर करानी है तो किस तरह करानी है। उसमें फिर कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ भी लेते हैं, क्योंकि उन सबको पता कि नहीं करते कि ये करते किस तरह, फंडोस्कोप कौन सी आंख को कौन सी आंख से देखते हैं। ये फिर सर सारा उसको देन इसका बैकग्राउंड आपको होना चाहिए, वरना फिर जाके अननेसेसरी में इतना फंस जाओगे आप वहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करवानी, लेकिन अगर करवानी है फिर उसके साथ जस्टिफिकेशन की ये होगा, आगे प्लान बड़ा क्लियर होना चाहिए आपका कि लेट्स सपोज अगर चेंजेस आएंगे तो हम ये करेंगे, नहीं आएंगे तो क्या करेंगे। सर हमारे तो यही होता है कि अगर आई से रिलेटेड चेंजेस हैं तो क्योंकि ये हमारा फील्ड नहीं है, तो फिर हम तो सिर्फ वो आई स्पेशलिस्ट से ही एवेलुएशन करवाते हैं। नहीं, करवा लो, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ करवा लो, लेकिन उससे आपकी मैनेजमेंट में क्या चेंजेस आएंगे? सर हमारी मैनेजमेंट में तो ऐसे चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन पेशेंट की एक जनरल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, दूसरा आप इसमें कह सकते हो, जो इतना टर्म पे है और उसको आप घर भी नहीं जाने दे रहे और उसको आप भिजवा रहे हो आई को चेकअप कराने के लिए, उसमें दूसरी चीज में आप कह सकते हो कि जी आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि इसके चेंजेस आ गए हैं, तो हमने जो इसकी मैनेजमेंट होगी हम उसके बाद उसको प्लान कर लेंगे। जी सर, उस पे इमरजेंसी तो पेशेंट नहीं है ना? और नहीं सर, उस पे हमारी मैनेजमेंट पे, लेकिन एक पेशेंट की जनरल हेल्थ और एवेलुएशन पे उस पे फर्क एग्री, पड़ेगा। उसके लिए है। और उसको होगा जी कि फर्दर वाली जो है, अगर तो वो है लेट्स सपोज 28-29 वीक्स पे कोई और मसला नहीं, फिर तो कहोगे चलो जी आप आई वाले से ओपिनियन ले लो। जो टर्म वाला आ जाएगा जिसकी आपने डिलीवरी प्लान करनी है अभी, फिर देन नॉर्मली अगर तो शी इज फिट इनफ टू गो, चलो ठीक है। जो नहीं है फिर उसको आप कहोगे कि जी कि मैं इसको जो असेसमेंट इसकी जो है वो आफ्टर डिलीवरी के लिए इसके प्लान के अंदर पोस्ट ऑफ फॉलोअप जो होता है हमारा, उसमें जाके मैं डालूँ। जी सर। जी जी ठीक है। बिल्कुल सर। तीसरा देखो, बात ये है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जी कि मैं इसकी वी बैक नहीं करना चाहती, मैं इसका सेक्शन करना चाहती हूँ, लेकिन उसकी जो आप जस्टिफिकेशन दे रहे थे वो मुझे नहीं सेट रही। देखो मुझे अगर आप कहोगे कि जी 99% चांसेस हैं कि मेरा, आपको डर वी बैक में क्या है, स्कार रप्चर हो जाएगा इस केस में। सर इस केस में सिर्फ सर स्कार रप्चर का नहीं है सर, दूसरे हाँ ये भी है कि कोड प्रोलैप्स हो सकती है, अब्डक्शन हो सकता है, फीटल बेटा, डिस्ट्रेस हो हॉस्पिटल में सकता बैठे हो, कॉर्ड प्रोलैप्स होती है तो नॉर्मल डिलीवर कर लोगे अपने, नॉर्मली कह रहा हूँ उसी टाइम सेक्शन में लेके जाओगे, सेक्शन कर लोगे 15 मिनट। है सर, लेकिन देखो, जी सर। मेरी बात सुनो, जी सर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मैनेजमेंट गलत कर रहे हो, उसकी जस्टिफिकेशन देने का तरीका होना चाहिए। जी जस्ट देयर हैज टू बी अ रीजन कि वो करो। आइडली स्पीकिंग, बिफोर वी डिसाइड अपॉन इन दिस केस कि जी कि मैंने इसको नॉर्मल डिलीवर करना है कि हमने इसका सेक्शन करना है, वुड बी अ बिशप स्कोर फर्स्ट।
बेबी का वेट सिर्फ 2 पॉइंट समथिंग है, जो आपने खुद ही दिया है। जी सर, ठीक है, 2.7 kg। हाँ। AFI भी 17 है, कोई बहुत ज्यादा नहीं रेडिकली सर, ज्यादा नहीं है। 17 नहीं है, 35। कितना? 35। 35, चलो ये ठीक है, आई एग्री। उसमें होता यह है कि जितना ये डिस्टेंशन ज्यादा होती है उतना स्कार स्ट्रेच हुआ होता है, उतना इंसिडेंस जो है वो 1% से बढ़ जाता है। इट इज नॉट 1%। 1% तो आप उसमें दे रहे हो जिसमें बिल्कुल ही हर चीज नॉर्मल है, बच्चे की एवरेज साइज वेट है और उसमें जाके कर रहे हैं। जितना यूट्रस स्ट्रेच होगा उतना स्कार के रप्चर के चांसेस बढ़ते जाते हैं। एंड विद 35 AFI आप ठीक कर रहे हो। इसमें फिर बात ये आ जाती है कि मैं अगर होता अकेले सपोज के मैं कहता कि जी हम इसका बिशप करके देख लेंगे, करना नहीं है हमने, इसका हमने करना सेक्शन ही है। जी फिर हम पेशेंट से आके बात करके उसे कहेंगे कि जी इसमें आपका इंसिडेंस ऑफ नॉर्मल से ज्यादा इतना बढ़ जाता है, बच्चे में ये भी हो सकता है। लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आगे मदर को बताने वाली थी वो ये थी कि आपकी हमने एक अनोमली जो है वो हमारी डायग्नोज हुई है, जिसमें ड्यूरिनल इट्रीजिया है, जिसकी वजह से आपका ये हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी अनोमलीज और ऐसी हैं जो हमें नहीं पता चलता, वो आफ्टर डिलीवरी पता चलता। आपने पीडियाट्रिक वैल्यूएशन तो इसकी करा ली, जी सर। लेकिन एसओ में क्रोमोसोमल आई थिंक कौन सी 13 आती है या 30% सर है हाँ, रिस्क। स्ट्रक्चर, अदर स्ट्रक्चर नॉर्मली 50% है और क्रोमोसोमल का रिस्क 30% है। ये जी बात मदर को बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर डिलीवरी। 30% और ये बहुत ज्यादा हाई इंसिडेंस है। वो सर, इसलिए बतानी क्योंकि आप बताओगे कि जी अभी हमारे पास अल्ट्रासाउंड में हमारी सिर्फ एक एनोमली डायग्नोज हुई है, लेकिन इसके साथ और बाकी सारी चीजें आ सकती हैं। वो हमें तब पता चलेंगी जब बेबी डिलीवर होगा। और वो हो भी सकती हैं कि उसमें कोई ऐसी हो जो लाइफ लॉन्ग अनकम्पेटेबल विद लाइफ भी हो सकती हैं और लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स के साथ चल भी सकती हैं। अभी तक हमें इतना पता है, लेकिन फर्दर पता होने के लिए हमें बड़ा जरूरी है कि हमारा ये सारी चीजें हमें पहले हो, क्योंकि दीज थिंग्स हैज टू बी काउंसल्ड। क्योंकि मैंने तो आपका बेबी डिलीवर कराया, बाद में उसकी आईयूडी करा दी या न्यूनेटेड डेथ करा दी। सर, क्योंकि मदर अदर हैज एनॉमलीज क्रोमोसोमल्स हो सकती हैं उसमें, दूसरा, which we can't diagnose antenatal। यस यस। और यही पेशेंट अगर आपका आता है 28 वीक्स के ऊपर, जब उसका हुआ था, दैट वाज अ टाइम जहां पे इसको ऑफर होनी चाहिए थी एम्नियोसेंटेसिस एंड स्क्रीनिंग ऑफ जेनेटिक। सर, वैसे तो सर ये ऑफर तो एमनियोसेंटेसिस की एक ऑप्शन तो है, लेकिन सर हमारे यहाँ पे कहीं फैसिलिटी इस तरह से है, हम करवा सकते हैं? नहीं, आप नहीं करा सकते, दुनिया में तो होती है। मैं अगर इसको ही ले जाता, मैं पहले सोच रहा था लेके जाऊं, लेकिन हमारी डिस्कशन आगे चली कि अगर मैं आपसे पूछता कि जी 20, अगर यही 20 वीक्स पे आपके पास ये पेशेंट आता विद लाइकर ज्यादा और इसके साथ, आप क्या करते फिर दैट वाज द टाइम जहां पे हम उसको डिस्कशन करते कि जी हमारी एक नॉर्मली देखो, इसकी 3 दफा आपने कराई है फीटल पीड्स वालों से एवेल्युएशन। जी सर, एक और दफा तो आइडली, ऑलरेडी हुई थी और एक दफा जब अब आई है तो तब। और इसकी एवेल्युएशन किससे होनी चाहिए थी वैसे? सर फीचर मेडिसिन। नो, फीटल मेडिसिन वाले तो चलो अगर अवेलेबल हैं वो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर पीडियाट्रिक जनरल, सर्जन। जनरल पीडियाट्रिक सर्जन। पीडियाट्रिक सर्जन हैज टू बी इन्वॉल्व, क्योंकि बाद में बेबी के साथ सर्जरी, सर्जरी किसने करनी? तो पीडियाट्रिक सर्जन है। वही बताएगा ना कि जी कि हम बेबी आएगा, उसमें हम पहले एनजी डाल के देख लेंगे, अगर तो वो पास हो जाती है तो फिर हम ये प्लान करेंगे, अगर वो नहीं पास होती तो फिर हम सर्जरी करेंगे। सर्जरी कब करेंगे वो बेबी की कंडीशन पे डिपेंड करता है, उसके लंग्स पे डिपेंड करता है, उसकी उस पर सारा करता है। और ये प्लान करके हम जाके बताएंगे। जो आपने इतने दिन उसको बैठाई रखा अपने पास और कुछ नहीं किया, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसकी कंसल्टेशन विद पीडियाट्रिक सर्जन होनी चाहिए कि जी ये रिपोर्ट आ गई, ताकि हम उसको प्लान कर सकें। दीज आर लाइकली इतनी चांसेस कर कि सकते हाँ, दैट, और ये तो नहीं कि आपके हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक सर्जन है नहीं, हैं से, वो तो अवेलेबल होते हैं। वो अवेलेबल होते हैं। तो दिस दिस ही हैज दिस बेबी हैज टू बी इवैल्यूएटेड। अगर आपके पास ये आ जाता है इतने दिनों में, कम से कम मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके पीडियाट्रिक सर्जन से ओपिनियन जरूर लेनी है, ताकि वो एक प्लान डिवाइस कर दें। वो कहेगा हाँ जी आफ्टर डिलीवरी हम हफ्ते बाद करेंगे, या पहले एनजी डालेंगे, एनजी चली जाती है, फिर हम फीड करके स्टार्ट करके देखेंगे कि ड्यूटनल एनेस्थीसिया के साथ कोई और आगे का ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं। फिर उसके बाद आगे हम इसका डिसाइड करेंगे कि हमने इसकी सर्जरी करनी है, किस तरीके से करनी है। इवन समटाइम्स अगर वो पास हो जाए तो ऐसे बच्चों की फिर वो पीडियाट्रिक गैस्ट्रोस्कोप करते हैं।
देखने के लिए कि क्या है। तो ये सारी चीजें हमें ऑन पेपर लाके करके आगे जानी है। तीसरा, मैं जब आपसे बात कर रहा था ना, आप ये हाइपरटेंशन ये सारे को चैप्टर को खोल लिया, पेशेंट को आप भूल जाते हो। अब इमेजिन करो कि यही पेशेंट आपके पास एक हफ्ता एडमिट रहती है, उसी का घर अगर लेट्स सपोज कहीं आपके हॉस्पिटल के करीब है, मैं आई डू अंडरस्टैंड कि जी पॉलीहाइड्रोमियाज है, ये चली जाएगी। क्या हर पॉलीहाइड्रोमिया को आप एडमिट करके अपने बेड में लटा देते हो एंटीनेटल वार्ड में? हमारे तो एंटीनेटल वार्ड में बेड ही कोई सर 8-9 है। अभी नहीं सर, जिस पेशेंट को काफी रिमोट अभी टाइम हो डिलीवरी में, उसको एजुकेटेड पेशेंट हो और उसको थोड़ा सा नहीं, फ्री हो, ये उसको काउंसलिंग के साथ हम डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज कर सकते हो। और इस पेशेंट का भी आप बात जरूर करके देखोगी, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको नहीं करना। आपने इसकी जस्टिफिकेशन बिल्कुल ठीक दी कि जी पाकपतन से आई है, इसलिए हम हॉस्पिटल, लेकिन उससे ये जब आप अपना इसकी हिस्ट्री ले रहे थे, यू शुड हैव, ये भी एक क्वेश्चन आप उसमें ऐड कर लो कि क्या जी आपके पास हॉस्पिटल के पास रहने की जगह है, आपके पास ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, आप कितनी देर में कोई प्रॉब्लम होती है तो हॉस्पिटल पहुंच सकते हो। ओके जी, मेरे पास तो ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल नहीं है, मैं तो पाकपतन से आई हूँ, मुझे तो कोई पता नहीं है, फिर आप 100% एग्रीड हो कि जी हम उसको एडमिट करके रखेंगे। पर पेंटर उसका मियाँ है, हफ्ता पहले ये रहेगा, हफ्ता सेक्शन के बाद रहेगी। तो आप इमेजिन करो व्हाट अ ग्रेट लॉस टू द फैमिली एंड एवरीबॉडी। 2 बच्चे हैं उसके, उनको कौन संभालेगा? ये सारी चीजें एवेल्युएट करनी है ना आपने। जी सर। और अगर आप से घर भिजवाते हो तो आप कहोगे कि जी हाँ, जिसके पास ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है, मिडिल ऑफ द नाइट भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो शी कैन कम, 15-20 मिनट्स में ये आ जाएगी, फिर हम आके आगे देख लेंगे। एंड इफ दिस सेम पेशेंट कम्स इन लेबर, जी आप सर। करके पहले करके देखते हो, शी इज 4-5 सेंटीमीटर डायलेटेड, तो फिर आप क्या करोगे? फिर भी अगर सेक्शन कर दो। सर अगर एडवांस लेबर में आ गई है तो सर फिर हम ट्रायल दे सकते हैं मॉनिटरिंग के साथ, बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग के साथ, सीटीजी शाबाश। मॉनिटरिंग के साथ, बीपी मॉनिटरिंग एंड सर वो सारी प्रिपरेशन ओटी की, और उसके साथ हम उसको ट्रायल दे सकते हैं। ओटी को रेडी रखें अपना, उसके साथ हम इसको फिर शॉर्ट ट्रायल को दे सकते हैं अगर एडवांस अगर वो लेबर में एडवांस लेवल में आएगी तो फिर हम इसको सारी अपनी वी बैक की जो पैरामीटर्स हैं उनको फिलअप करके हम उसको फिर नॉर्मल रिवर कर देंगे। अगर अर्ली लेबर में आती है तो फिर हम इसका जल्दी से सेक्शन कर देंगे, प्रोवाइडेड हमने बाकी बाकी सारी बातें मदर को अच्छी तरह बता दी हैं, और फर्दर नॉर्मलीज, डिलीवरी, पीडियाट्रिशियन को इस टाइम पे अवेलेबल करना, वो सारी चीजें करके दें। और ठीक। सर फिर और हम इसको ट्रायल दे सकते हैं। हाँ हाँ, जो क्रैकिंग लेवल में आ गया है, जो आपका ख्याल है कि पहले उसकी एक नॉर्मल डिलीवरी हुई है, 7-8 सेंटीमीटर हो गई है, व्हाई नॉट? स्पॉन्टेनियस में जाए तो फिर हम इसको कह देंगे एग्जामिनर को कि वी विल गिव हर ट्रायल विद द नो नो मॉनिटरिंग। बेटा, मैंने कहा क्रैकिंग लेवल पे अगर आ गई। क्रैकिंग लेवल का मतलब है जिसने आपने कहा एडवांस लेवल में अगर वो आ गई है, फिर आप जाहिर है उसको मॉनिटर करके डिलीवर कराओगे। अगर 2-3 सेंटीमीटर अभी इनिशियली है, लेटेंट फेज में है, फिर आप उसको शिफ्ट करके उनको सारा इन्फॉर्म करके कर दोगे। लेकिन अगर पेशेंट इंसिस्ट कर रहा है कि जी मैंने तो सेक्शन नहीं कराना, फिर वही सारे उसके प्रोज एंड कॉन्स से बता के डिसीजन उसकी है, आप उसकी तैयारी करोगे जहां पे आपको सारी चीजें वी बैक के लिए अवेलेबल हैं। अगर आपके पास वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, आप उसको रेफर उस जगह कर दोगे जहां पे उसकी वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती है, जहां पे करके डिलीवर हो सकती है। और सर इसमें एक और क्वेश्चन भी पूछना था कि अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक हो, स्वेयर पॉलियो, तो उसमें एमयू रिडक्शन का ऑप्शन है, वो हम बेटा करेंगे? मेरा, इट्स बिन एजेस सिंस वी लास्ट डिड एम्यू रिडक्शन। उसका कुछ ज्यादा एडवांटेज होता नहीं है, क्योंकि कुछ अरसे के बाद फौरन ही दोबारा उसका रीफिल हो जाता है। इसको भी एट्रीसिया है, इसका तो दोबारा थोड़ी देर में दोबारा हो जाएगा। लेकिन देखो ये तो जिस स्टेज पे आप आ गई है, अगर ये बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल है तो मे बी मैं इसको स्टीरॉइड्स दे के इसको इसका अपना। सर सपोज कि अगर 33-34 वीक्स पे यही पेशेंट इस तरह सिम्टम्स के साथ आए, स्वेयर हाँ, पॉली भी ज्यादा हो जाए इसका, तो फिर हम एमयू रिडक्शन की ऑप्शन रखेंगे इसमें? एम्यू रिडक्शन कितनी के बाद रिपीटेडली करोगे? 34 वीक्स पे बेटा जब कितनी पेशेंट बार? के सर सिम्टम्स पे डिपेंड करेगा, पेशेंट सिम्टोमेटिक होगी जब, वो तो अदरवाइज फिर तो नहीं अगले कर। 2 दिन में 3 दिन में दोबारा हो जाती है। तो फिर सर कितनी ऐसे बार पेशेंट की निकाल जो, के आप इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस करोगे? फिर सर ऐसे पेशेंट की जो सिम्टोमेटिक हो रही है और जिसका लाइकर ज्यादा होता जा रहा है, तो उसको फिर
नॉर्मल उसमें के साथ फिर अगली डिलीवरी प्लान करेंगे? नहीं, उसमें देखो ना, इट विल डिपेंड अपॉन कि आपकी न्यूनेटल फैसिलिटीज कैसी हैं। जी सर। मेरा डिसीजन जो होगा वो होगा उसके बेबी की न्यूनेटल फैसिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर तो आपकी न्यूनेटल फैसिलिटीज ऐसी हैं जो 34-35 वीक्स पे बेबी सर्वाइव कर जाता है और पेशेंट इतना सिम्टोमेटिक है, मैं तो उसको डिलीवर कराऊंगा रादर देन डूइंग मल्टीपल टाइम एमनियोसेंटेसिस। क्योंकि अब रोल ऑफ एमनियोसेंटेसिस मुझे याद नहीं पड़ता, मैंने अपनी ट्रेनिंग में जरूर किए थे, पर मैंने उसके बाद आई डोंट रिमेम्बर कि डूइंग इट। हार्डली एक आधा होगा कुछ रीजन से हमने किया था, लेकिन इट इज नॉट दैट के बार बार, क्योंकि ये तो ये किया तो आपका, क्योंकि इट हार्डली टेक्स अबाउट 2 days। अगर कॉज वही कोई अंडर कर रही है तो फिर वो बाद में आ जाती है। हाँ, जो डायबिटिक्स हैं वो हैं, उनको आप एडमिट करके अगर ब्लड शुगर वाला कंट्रोल कर लो तो मे बी पेशेंट थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा हो फॉलो। जाए। और लेकिन सर एनसेड्स का रोल भी? किसका? सर एनसेड्स का रोल, इंडोमेथासिन, अगर इस तरह के पेशेंट को अगर हम कंसीडर कर सकते हैं अगर बहुत सिम्टोमेटिक स्वेयर पॉली है? अब उन्होंने इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया है, इन जो लास्ट मैंने पढ़ा था इंडोमेथासिन वगैरह, मुझे जाके रीचेक करना पड़ेगा, आप भी कर लो बेशक, कि हम नई गाइडलाइंस के अंदर क्या पॉलीहाइड्रोसिस के लोग कहते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट में आप दो। सर 32 वीक्स से पहले तो कहते हैं कि अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक हो, स्वेयर हो, 32 वीक्स के बाद नहीं, 30 ये से मुझे 32 वीक्स। उसका मुझे रीचेक करना पड़ेगा, ये भी आप जाके चेक करके देख लो, जी आई एम सर। नॉट वेरी श्योर। और ये सर मैं एक चेक और चीज़ करके, सर, सर अगर ये तो पेशेंट प्रीवियस वन है, अनोमली है, लेकिन सर हमारे पास बाज़ औक़ात इस तरह आइसोलेटेड पॉली के पेशेंट भी आते हैं या डायबिटीज के साथ, अगर वो प्रीवियस वन या अनोमली नहीं है तो सर उसमें हाँ हम ट्रायल देंगे? अगर प्रीवियस वन भी नहीं है, कोई अनोमली भी नहीं है, लेकिन देखो सिर्फ वो पॉली है? सिर्फ पॉली है, और इसका अगर कफेलिक है जी सर, तो कैफेलिक है। उसमें सिर्फ ये होता है कि दिस काइंड ऑफ पेशेंट्स जो हैं उनकी, अगर आप जो लेबर है वो बिकॉज ऑफ डिस्टेंशन यूट्रस प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन ट्रायल आप दे सकते हो प्रोवाइडेड यू हैव फैसिलिटीज, कि जहाँ पे अगर प्रोलैप्स हो जाता है और कॉर्ड प्रोलैप्स होगी तो विद इन 10-15 मिनट्स टाइम आप उसका सेक्शन कर सकते हो किसी टाइम पे। थिएटर अवेलेबल है, सब चीजें अवेलेबल है। फिर अगर पेशेंट आके कहता है कि जी मैंने करना है, पॉलीहाइड्रोमिया इज सच एज सच इज डायरेक्टली नॉट इंडिकेशन फॉर डूइंग अ सी सेक्शन डायरेक्टली। हाँ, पॉली के साथ सेक्शन प्रीवियस सेक्शन आ जाता है, आपके चांसेस सेक्शन के बढ़ जाते हैं। पॉली के साथ ट्रांसवर्स लाई आ जाता है, ब्रीच आ जाता है, तो ऑफ कोर्स उसकी इंडिकेशन अपनी जगह हो जाती सर अदर कॉम्प्लिकेशन के साथ, यानी सिजेरियन का रिस्क है, आइसोलेटेड को हम दे सकते हैं ट्रायल? है। यस, प्रोवाइडेड कफेलिक है, बेबी का वेट ज्यादा नहीं है, पेशेंट की कोई ऐसी और इंडिकेशन नहीं है, तो ऑफ कोर्स उसका करके आप कर सकते हो। और सिर्फ जो बात है ना वो पेशेंट को कन्विंस करके उसको गाइड करने वाली बात है। और अगर आपने पहले खुद ही फैसला कर लिया कि नहीं जी मैं तो सेक्शन ही करना, बाकी मैंने करना ही कुछ नहीं, वो फिर सोच गलत हो जाती है। यू हैव टू, जो अगर आपने डिस्कस करना है पेशेंट को उसका करना है, लेकिन फिर जो उसकी विशेष है उसको भी आपने अंडर रखना है, अपने कंसिडर करके जरूर करना है। मेरे पास भी रिसेंटली पेशेंट आई है, मैं उससे कहा प्रीवियस वन थी, वो कहे जी जो मर्जी हो जाए डॉक्टर साहब, मैंने तो कराना सेक्शन नहीं है, मेरा पिछला बड़ा बुरा एक्सपीरियंस था, मैं तो नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहती हूँ। आप उसको एक देते हो पैम्फलेट जिसमें सारी वीबैक की इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, सारा कुछ कॉम्प्लिकेशंस लिखी हुई है, वो पढ़ी लिखी पेशेंट है, वो पढ़ लेती है, फिर भी शी कम्स बैक टू यू एंड ऑप्ट्स के जी हाँ जी मैं तो नॉर्मल करानी है, तो बाय ऑल मींस फिर आप, हाँ, फिर आपके ये मेक श्योर करोगे कि जहाँ पे कर रहे हो वहां पे सारी फैसिलिटीज हो। मैं एज अ पर्सनल ऑब्स्टेट्रिशियन प्रीवियस वन को इंड्यूस नहीं करता। जी सर, यही मैं मेरा पूछने लगी थी कि प्रोटोकॉल, पेशेंट इंसिस्ट करती है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी करें, हर सूरत हाँ, रिस्क उसको पता चलने के बाद भी वो कहती है मेरी नॉर्मल करें, तो सर फिर उसमें वो प्रीवियस वन है, अगर लेबर में नहीं जाती तो फिर हम तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते, क्योंकि इंडक्शन जो है वो हमारा प्रोटोकॉल नहीं है प्रीवियस वन में। आपका प्रोटोकॉल नहीं है, गाइडलाइंस क्या कहते हैं कि बिल्कुल एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है नहीं इंडक्शन। सर, गाइडलाइन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, वो कहते हैं कर सकते हैं बट रिस्क 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है रिस्क ऑफ फ्रैक्चर यही विद यही इंडक्शन। बात आपने पेशेंट को बतानी। एंड इफ शी सेज कि जी मैं तो विलिंग हूँ करने के लिए, मेरी तो रिश्तेदार थी उसकी हुआ था, उसका नॉर्मल हो गया, फिर ये भी आप ये लाइन बिल्कुल ड्रॉ नहीं करनी है आपने कि जी मैं नहीं करूंगी। हाँ, उसको करने के लिए मेरे पास कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होनी चाहिए, मेरे पास कंटिन्यूस फैसिलिटीज होनी चाहिए, मैं 5-10 मिनट के अंदर जरूरत पड़ेगी तो मैं ये सारी चीजें कर सकती हूँ, पीडियाट्रिशियन अवेलेबल होना चाहिए, ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, हम कर देंगे।
पेशेंट की विश थी, इंडक्शन हमारी फिर नहीं। पेशेंट है तो फिर ऑप्शन विश है तो ऑप्शन दे देंगे इंडक्शन के। यस बिल्कुल, Although व्हाई routinely नॉट। we don't do it, but if the हाँ, patient दैट requests. आप बता दो कि जी हमारा प्रोटोकॉल रूटीनली नहीं है, पर अगर आप करते हो तो आपके लिए हम कर देते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, ये हमने आपको रिटन डॉक्यूमेंट दे दिया है जिसमें स्टिल इफ यू वांट तो ऑफ कोर्स, लेकिन डोंट ड्रॉ अ लाइन कि जी मैं नहीं करूंगी। मैं तो बड़ा प्रोसेस कर रहा था कि जी आप आओ, क्योंकि मैं फिर अगले सवाल मैंने उसके हिसाब से सोचे हुए थे। आप कहते नहीं, मैंने डिस्कशन तो आपने की ही नहीं, आपने करना। फिर आप तुम्हें किसी, आपका तो दिल ये था कि फिर आप किसी और के पास जाके करा लो, मेरे पास ना हो। सो यू हैव टू काइंड ऑफ थोड़ा सा ना एग्जाम में ये भी आपने देखना है कि जो आपका एग्जामिनर है वो क्या चाह रहा क्या है और क्या है। हाँ, जो बिल्कुल एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है जैसे प्रीवियस 2 सेक्शन आ जाते हैं, उसमें तो उसमें जिंदगी नहीं करते। अभी रिसेंटली मेरे मरीज है प्रीवियस 2 का आर्टिकल लेके आगे जी ये भी नॉर्मल हो सकती है, मुझे नॉर्मल कराएं, मैंने गूगल से निकाला। सर फिर क्या इसमें हम करोगे? सर हम तो कह देंगे कि भाई हम तो नहीं करते क्योंकि रिस्क ऑफ रप्चर प्रीवियस 2 में तो बहुत ज्यादा है। हम नहीं कह सकते, हम ये नहीं कि हम नहीं करते। आप फिर कहोगे कि इतना परसेंट चांस होता है, यू नीड टू हैव फिगर्स इन योर माइंड। इतने फोल्ड आपका चांस, 2 to 3 टाइम्स आपका चांस ऑफ रप्चर का बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, बेबी की अब आईयूडी हो सकती है, आपकी सिजेरियन हो सकती है, ये सारी चीजें हो सकती है। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि हम नहीं करना चाहते। जी सर जी। पर एवरीथिंग हैज टू बी साइंटिफिक, नॉट नॉन साइंटिफिक। और ये नहीं कहना कि जी हमारा प्रोटोकॉल नहीं है, आपका प्रोटोकॉल किसी वजह से बना हुआ है, उस वजह को जाके रिव्यू करके देखो। उसमें मे भी चांसेस हैं कि जी हमारा तो लोड इतना ज्यादा होता है, हमारे पास तो सीटी मशीन ही नहीं है कि इसको कंटिन्यूस मॉनिटर लगा सके। दैट इज फेयर इनफ। 1-to-1 मॉनिटरिंग का प्रॉब्लम होता है, थिएटर की अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम सारी होता है। बातें ना, दैट इज वाई आपका हुआ। लेकिन जब आप एग्जाम में जाओगे, एग्जामिनर हमेशा, जिस तरह मैंने कहा जी आप दुनिया के बेस्ट सेंटर में बैठे फिर क्या करोगे, वहां पे क्या करना है, जो फिर आपको गाइडेंस वो सारी चीजें कैसे, हाँ जी पॉसिबल है लेकिन ये सब चीजें होनी चाहिए। आप कह सकते हो कि जी सब चीजें अवेलेबल है, फिर हम जरूर करेंगे। क्योंकि कल आपने सारी उम्र तो अपने डिपार्टमेंट में नहीं रहना ना, कल जाके आप प्राइवेट प्रैक्टिस भी करोगे, किसी जगह भी जाके बैठ के काम तो करोगे। वहां तो अगर सब चीजें अवेलेबल है फिर उसके हिसाब से आप अपने आप को मॉडिफाई करोगे। जी सर। चलो, आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट, टाइम ओवर हो चुका है, ज्यादा हो चुका है, बाकी करके देंगे। लेकिन आई थिंक यू डिड अ गुड जॉब एक्सेप्ट फॉर द ये जो इन्वेस्टिगेशन है ना, उसको थोड़ा सा अपना दोबारा रिव्यू करो, जी सर और जी। हिस्ट्री का थोड़ा सा बेटर ना दोबारा करके इसको देख लो। और मैंने जब डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछा तो आप परेशान हो गए। जी सर वो एकदम से वो, क्योंकि नहीं मैंने जेन में पॉली विद एनोमली का ही किया हुआ था तो नहीं नहीं, लास्ट को आपको रजिस्ट्रेशन हाँ, जब आप करते हो ये तो आप लकी हो कि आपके पास अल्ट्रासाउंड पड़ा हुआ था। अल्ट्रासाउंड आपको उसमें देना था सेकंड हाफ में। जी सर। और सर वो सेकंड हाफ में अल्ट्रासाउंड, लेकिन सर पेशेंट ने खुद भी बता दिया कि एनोमली है कोलाई। अब देखो एनॉमलीज भी तो मल्टीपल टाइप हो सकती है ना, जी सर। ट्रीटेबल है नहीं। इसने लेकिन एनॉमली थी, इसने सबसे बड़ा आपको खुद ही हिंट दे दिया कि जी मेरी पीडियाट्रिशियन से वैल्यूएशन की, उन्होंने कहा सब ठीक है। दैट मीन्स कि ऐसी एनॉमली है जो विच प्रैक्टिकल कैन किया। टेकन केयर ऑफ। अगर ऐसी खुदा ना खासा एनॉमली होती जो पहले ही आपकी खराब हो जाती, या पेशेंट बेबी वाज नॉट एबल टू सर्वाइव, तो इसको पहले ही उस स्टेज पे ही टर्मिनेशन की एडवाइस मिल चुकी होती। पेशेंट ने तो खुद ही आपको बता दिया। मुझे नहीं पता था क्या एनॉमली है इसकी, लेकिन मेरे ज़हन में जब आपने कहा कि जी एक दफा वैल्यूएशन हुई, दूसरी दफा वैल्यूएशन, देन आई थॉट कि ऐसी एनॉमली है जो ट्रीटेबल या मैनेजेबल एटलीस्ट। जी सर ये तो पेशेंट पता ने खुद ही बता दिया था पीडियाट्रिशियन का जब कि आपको पता एनोमली है और डिलीवरी के बाद इवैल्यूएट करेंगे बेबी इसीलिए सर्जरी के डीटी लिए। तो आपसे बेटा ऑब्स के केस में पूछते हैं, और ये गायनी के केस में होती है। पहला जो हाफ है वो नंबर ही आपको इन्वेस्टिगेशन और डीडी पे देते हैं, दूसरे हाफ में मैरिज मैनेजमेंट आती है। जी तो सर। डिफरेंशियल आपसे हर किसी का पूछा जाएगा, तो वो भी जी जब सर। आप कंपाइल करते हैं उसको बता दिया करो। जी सर। चलो बेटा, ओके, गुड जॉब। सर ये टॉर्च इंस्पेक्शन मांगेंगे हम लोग इन्वेस्टिगेशन में? बेटा टॉर्च तो अब आजकल आउट होगी टोटली, आई डोंट थिंक सो। और एट 37 वीक्स तो बिल्कुल ही कुछ का रोल नहीं, आई डोंट थिंक सो कि वो रिकमेंडेड नहीं है ना। पहले अब करते थे, पहले किया करते थे, लेकिन अब तो टॉर्च इन्फेक्शन आई थिंक एनॉमलीज के अंदर से निकाल दिया गया है। मैंने रिसेंटली पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे जाके उसको भी रीचेक कर लेता हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल टॉर्च इज द इंडिकेशन फॉर डूइंग दैट। एक्सक्यूज मी सर,
इस पेशेंट जी में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसकी जो DDM डायबिटीज़ है पॉलीहाइड्रोमिनस भी है, तो इसको हमने रूल आउट करना है क्योंकि इससे भी मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी चेंज हो जाती है, बिकॉज स्टिल वी वर नॉट श्योर दैट शी इज डायबिटिक और नॉट। बेटा, मैं उसी लिए तो इनका जीटीटी कराना चाह रहा था कि जीटीटी हो जाता, अगर वो GTT हो नॉर्मल आ जाता जाता, अगर तो वो फिर हम नॉर्मल श्योर हो जाते। अगर तो वो नॉर्मल आ जाता, हम इसी तरह मैनेजमेंट, अगर वो ज्यादा आता तो जाहिर है फिर 6 पॉइंटर और कंट्रोल बाय व्हाटएवर मेथड एंड फिर आगे डिलीवरी। पर इसमें हम जो इन्होंने एक चीज और भी मिस की, रोल ऑफ स्टीरॉइड्स, हमें वो लगा देने चाहिए थे। सर स्टेरॉइड कवर दिया था, मिल चुका दिया, है पेशेंट को। हाँ जी वो सर, मिल मुझे चुका है। मुझे आपने जी सर, हिस्ट्री में ड्यूरिंग शायद एडमिशन। बताया, मैंने सुना नहीं, लेकिन ये भी अच्छा बताना। सर, वो जैसे कि इस पेशेंट की हाइड्रोन्यूज जो है मॉडरेट है और प्रीवियस 1 स्कार है, सो व्हाई शुड वी वेट टिल द 38 वीक्स? उससे पहले भी इसका स्कार डेहिसेंस नहीं हो जाएगा? तो आप डिसाइड नहीं कर सकते क्या कि अभी ही हमें इसका सेक्शन बेटा करना है तो कर ले? बेटा उसमें देखो ना, पेशेंट की हिस्ट्री असेसमेंट है, उसको अगर प्रेशर कंटिन्यूसली फील हो रहा है, अपना कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं या वो अनकंफर्टेबल है, उसके हिसाब से फिर आप बेटर अर्ली करोगे। अगर पेशेंट इज स्टेबलाइज, कुछ ऐसा कंप्लेंट नहीं कर रही जो उन्होंने नहीं बताया, फिर यू कैन टेक इट टू 38 वीक्स, क्योंकि वी डू अंडरस्टैंड कि आपकी जो अब तो वो बल्कि 38 से भी थोड़ा सा आगे लेके जाके अगर हर चीज कंट्रोल है, ठीक है, इवन 39-40 पे लेके जाते हैं। ओके, थैंक यू सर। सर HbA1c थर्ड ट्राइमेस्टर में अभी इस वक्त 37+2 पे क्या स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन देंगे, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन जो होनी थी वो हो चुकी, अब क्या करेंगे? बंद हो गया? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, ये क्वेश्चन पूछना था। HbA1c थर्ड ट्राइमेस्टर पे अभी 37+2 पे ये पेशेंट है, इस पे क्या स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन देंगे कि HbA1c अभी बेटा करा के वो क्योंकि मैनेजमेंट क्या करें? वो जीटीटी जो है वो ये करानी रही थी, 6 पॉइंटर करानी थी, मैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा था। अगर मैं ओजीटीटी कराता हूँ, वो नॉर्मल आ जाता है, फिर कुछ और कराने की जरूरत नहीं है। हम्म। अगर वो एबनॉर्मल आएगा, फिर हम ये सारी बाकी सारी चीजें कराएंगे। सर अगर उसकी एबनॉर्मल रिसर्च आ जाता, अगर एबनॉर्मल आ भी जाता है तभी भी HbA1c को क्या जस्टिफाई करेंगे? मतलब अभी इस ट्राइमेस्टर में क्या मैनेजमेंट आएगा, इतना को चेंज ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा? फिर इसमें पॉसिबिलिटी आप ये कह सकते हो कि जी कि जो इसका पॉलीहाइड्रोमियाज है, बाकी नॉर्मली तो आपकी ये डायबिटीज की वजह से भी हो सकता है बेबी पे इम्पैक्ट हो रहा हो। देखो, सर आवाज कटे जा रहा है, फिर से सॉरी। रिपीट कीजिए। सर आवाज कट रहा था, फिर से रिपीट कर दीजिए। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर तो उसका जस्टिफिकेशन, अगर जीजीटी एबनॉर्मल आ जाता है, फिर उसमें हम HbA1c करा के देख सकते हैं कि जी जो बेबी का पॉलीहाइड्रोमियाज है, इज इट बिकॉज ऑफ द कंजेनिटल नॉर्मली और इज इट बिकॉज ऑफ डायबिटीज ऑल्सो? क्योंकि अगर डायबिटीज का भी इसमें कंपोनेंट आ जाता है तो फिर इसमें दूसरे फैक्टर्स बहुत सारे आ जाते हैं। उसमें फिर आपका ये डेक्सा लगाना, स्टीरॉयड कवर करना, उसका कब देना है, किस तरह मॉनिटर करना है, किस तरह करना है, बहुत सारे फैक्टर्स और उसमें ऐड ऑन हो जाते हैं। लेकिन इन हर केस अनलाइकली इसलिए है क्योंकि इसकी पहले दोनों जो प्रेगनेंसीज हैं उसमें डायबिटीज नहीं था, बेबीज का वेट ज्यादा नहीं था, इसमें भी बेबी का वेट ज्यादा नहीं है। Sorry. Sir, I have a question. जी Sir, बेटा, how we induce this patient previous one with polyidomyos if patient is insisting for vaginal delivery? उसमें बेटा देखो, आप पहले बिशप स्कोर करोगे, पहला काम। अगर बिशप इतना फेवरेबल है, मैं वैसे आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप सिंटो लगा के उसको डिलीवर कर सको, फिर तो आपकी ऑप्शन है करके प्रोस्टाग्लैंडिन से करना। साइटोटैक तो टोटली मेरा नहीं ख्याल कि इसमें एडवाइजेबल है प्रीवियस 1 सेक्शन के साथ। अगर करना है तो ग्लैंडिन जेल या इसके साथ आप कर सकते हो, लेकिन इट विल बी डिपेंडिंग Sir, अपॉन। if bishop is not good, then फिर आप how we वही induce? अगेन, नहीं, हाउ विल यूज, फिर आप तो जाहिर है अगर आपने करना ही है और पेशेंट इंसिस्ट कर रही है, फिर तो आप प्रोस्टाग्लैंडिन यूज करोगे ना बेटा। Okay. हाँ, फिर आप प्रोस्टाग्लैंडिन करोगे, लेकिन ये सारी बातें अगेन अगेन जिस तरह कहा था कि पेशेंट को दोबारा बता के।
और इंडक्शन की वजह से स्कार डिस्टेंस का चांस कितना बढ़ जाता है, बाकी सारी चीजें बताते हैं। वो सारी चीजें बताओगे, फिर भी पेशेंट कह के नहीं जी मैं तो जरूर करना चाहती हूँ, फिर एक अलग बात है वो करो। लेकिन मैंने इंडक्शन प्रीवियस वन की पिछले 5 सालों में से ज्यादा ही हो गया, मेरे ख्याल 8 साल 10 साल हो गए होंगे कि अब नहीं की। Sir, any role of intracervical Foley's हाँ बिल्कुल है, in previous? बिल्कुल है, 110% है, क्योंकि मैकेनिकल जो तो मैम आपकी सर हम उससे कर हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, 110% कर सकते हो, बल्कि दैट इज अ बेटर चॉइस देन प्रोस्टेट जो मैकेनिकल आपकी करते ओके। हो अल्ट्रेशन। तो फर्स्ट सर हम एग्जाम में ये ऑप्शन दें कि हम इंट्रासर्वाइकल फॉलीज फर्स्ट ऑप्शन, Yes. देन आई विल गो फॉर प्रोस्टेट। नहीं प्रोस्टेट आप दो ही ना इसके प्रीवियस के साथ, अनलेस कैंटल उससे होता नहीं है, आप कहो जी हम ये मैकेनिकल उसकी इंट्रासर्वाइकल फोलिज करके उसके साथ मैकेनिकल करेंगे, क्योंकि उस पर तो बहुत रिसर्च है कि उसमें डिसीज के चांसेस उतने बढ़ते नहीं। सर अगर यही अर्ली अगर gestation पे आए तो अगर अर्ली जेस्टेशन पे आएगा तो फिर आपने इसको हमने सिंथेसिस और उसकी सारी स्क्रीनिंग के लिए जरूरी है कि आप उसको कर दोगे। चलो बेटा बाकी सर आप एक अगर सर लास्ट क्वेश्चन सर, अगर पेशेंट पॉलीहाइड्रोमियास के साथ हमें एस्टेब्लिश लेबर में आ गई है तो सर उसकी कार्ड प्रोलैप्स के चांस तो ज्यादा है, तो सर उसमें ARM हम करेंगे या इसको स्पॉन्टेनियस, तो वो फिर स्पॉन्टेनियस तो खुद ही कार्ड उसका प्रोलैप्स हो जाएगा, तो सर इसमें कंट्रोल करेंगे यार? कंट्रोल ARM अगर हेड उसका एंगेज हो जाता है विद कॉन्ट्रैक्शन फिर आप कर सकते हो। अगर उसका हेड बिल्कुल फ्री पड़ा हुआ है ऊपर फिर ARM नहीं करोगे। यू हैव टू सी द हेड, अगर एक बार अगर एंगेज हो जाएगा फिर आप ARM भी करोगे तो फिर एकदम कॉर्ड कोलैप्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। पर मैंने ऑनेस्टली किसी किताब में कंट्रोल्ड ARM नहीं पढ़ा अभी तक। हमने हमें बताया गया था, प्रैक्टिकली करते थे, लेकिन मैंने किसी बुक में पढ़ा नहीं। अगर एग्जाम में बोलना है जरा ध्यान से बोलना, अगर ओके, किसी ने थैंक यू पढ़ा सर। है तो मुझे बता दे, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा अभी तक। अच्छा सर, अगर ये पेशेंट बेटा मैंने इंट्रासर्वाइकल फॉलीज ये के नहीं बाद जान। भी सर हाँ लास्ट जी, क्वेश्चन सर, अगर ये पेशेंट इंट्रासर्वाइकल फॉलीज के बाद भी प्रीवियस वन फेल्ड इंडक्शन हो जाए ना हो तो फाइनली सिजेरियन सेक्शन पे एंड अप करना है ना, नेक्स्ट तो चांस नहीं देना ना उसको अगेन फॉर डिस्कस इंडक्शन। विद द। देखो आप अच्छा एज अ डॉक्टर आपको ये भी पता है कि आप सेफ्टी पे कहाँ तक रह सकते हो, जी और यही सारी बातें फेलियर की पेशेंट को आप पहले बताओगे, और उसके बाद अगर फेलियर बता देना कि जी अगर इसके बाद हो जाएगा फेल हो जाएगा फिर मैंने आपकी बात नहीं सुनी फिर मैं ये करूंगी, दिस इज माई प्लान। क्योंकि अब इंसिस्ट करके ठीक है, सारी पेशेंट इंसिस्ट करते हैं कि मैं नॉर्मल डिलीवरी करूं, लेकिन एज अ डॉक्टर आपको सेफ्टी की लिमिट भी चाहिए। सही, ओके, ठीक, थैंक यू। ओके बेटा, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much.